Dear students, today I am going to discuss with you the Russian Revolution. Already I have told it is one of the most important subtopic of this chapter because it is completely related with the name of the chapter, that is the Socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, let's start. See, in 1914, during the period of First World War, Tsar Nicholas II ruled the Russian Empire. Okay, so see here the picture of Tsar Nicholas II. So economy and society, because Russian Revolution, it was started only for the peasants, because the peasants were started the revolt because economical condition was going down to down, and the society was also uh, problem, also so many problems created in the society. So here some important points I think you will write in your copy. Russian population about 85% people, they were an agriculturist. You know already. Industries were being set up, which was the most private property of industrialist. 85% पीपल तो एग्रीकल्चरिस्ट थे. उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री बना गया था, सेटअप किया गया था, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी था और कैपिटलिस्ट थे जो लोग, वो लोग ही इंडस्ट्री को सेटअप किए थे. वर्कर्स वेर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड यूनिट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड. तो वर्कर्स बहुत डिवाइड, मतलब उन लोगों का स्किल को लेकर के डिवाइड कर दिया गया था, उन लोगों का टाइमिंग को लेकर के, सैलरी को लेकर के, हर चीज को लेकर के दे डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड बट दे डिड यूनिट टू स्ट्राइक. लेकिन जब वो लोग बहुत डिससेटिस्फाइड हो गए, देन दे स्टार्टेड द स्ट्राइक also. And peasants had no respect for nobility, very unlike the French peasant. ओके यहाँ पे पेजेंट्स बिल्कुल भी नोबिलिटी मतलब जो एग्रीकल्चरल पर्सनालिटी जो लोग है, मतलब हाई जमींदार महाजन टाइप का लोग जिसको बुलाता है. नोबिलिटी मीन्स हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड दे हैड, सो दे वर नोन एज द नोबिलिटी. तो पीजेंट्स का बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं था और फ्रेंच पीजेंट्स को तो बिल्कुल लोग पसंद नहीं करते थे. Russian peasants were the only peasant community which pooled their land and their commune divided it. तो Russian peasants यहाँ पे means they were the only peasant community का क्या मतलब पूरा peasant community का ही थे वो लोग, और peasants का संख्या भी बहुत था. तो ये लोग क्या किए, मतलब बहुत उन लोगों का लैंड और इन लोगों का कम्यून जो है बहुत डिवाइडेड हो गया था, इसलिए इन लोगों का भीतर में बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं था. सो ये दिस वाज द रीजन फॉर स्टार्टेड द Russian Revolution, only for the peasants dissatisfaction. So now socialism in Russia, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा सोशलिज्म का आइडिया क्या है. there were so many important philosophers, Robert Owen, then Friedrich Engels, Karl Marx, सबका अलग अलग ओपिनियन हम लोग ले चुके हैं. So now we'll discuss again. All political parties were illegal in Russia before 1914. During the period of Tsar Nicholas II, before that all the political parties were illegal. 1914 से पहले political parties को illegal कर दिया गया था because monarchy system was introduced in Russia. monarchy system उससे पहले भी था, लेकिन ये थे powerful जार. The Russian Socialist Democratic Labour Party was formed in 1898. 1898 में ये जो लेबर पार्टी जो है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बना गया था. And it struggled to give peasants their rights over land that belonged to nobles. यहाँ पे peasants मतलब it struggled to give peasants their rights. यहाँ पे struggle इसीलिए हुआ था, कहाँ पे ना, ये जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बना गया था 1898 में, यहाँ पे स्ट्रगल ये लोग किए थे, ये पार्टी किया था ओनली टू गिव द पीजेंट्स दे राइट्स ओवर लैंड. उन लोगों का जमीन के ऊपर में पूरा अच्छा तरह से अधिकार रहेगा एंड दैट बिलोंग टू नोबल्स. ओके, मतलब पीजेंट्स के लिए ये लोग भी पहले से ट्राई कर रहे थे, मतलब उन लोगों को बेटर लिविंग कंडीशन देने के लिए, बट ड्यू टू द मोनार्की सिस्टम इट वाज फेल्ड आफ्टर 1898. So as land was divided among peasants periodically, which makes them natural socialists, and it was felt that peasants and not workers would be the main source of the revolution. And but Lenin did not agree with this, as he felt that peasants were not one social group. मतलब land जब divide हो गया था among peasants periodically, which makes them natural socialist. जब मतलब
प्रॉपर्टी को जब डिवाइड कर दिया गया कॉमन पीपल के भीतर में कुछ लैंड्स को लेकर के, तो ये लोग तो नेचुरल सोशलिस्ट बन गए थे और यहाँ पे इट वाज फेल्ट दैट पीजेंट्स एंड नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन सोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन। और क्या है ना, ये सब जो सिचुएशन, व्हेन द सिचुएशंस क्रिएटेड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन क्रिएटेड, देन द लेनिन did not agree with this. लेलिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। and who was लेलिन, about that we will discuss next slide. Okay, so with this as he felt that peasants were not one social group, क्योंकि ना peasants जो है ना एक ही कैटेगरी का नहीं है। so according to the situation, according to the category of peasants, it should be divided. पीजेंट्स का सिस्टम को लेकर के उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ना कोई वेल टू डू फैमिली का भी पीजेंट्स है, जैसा कि फार्मर्स तुम लोग देखे होंगे जिसका 1000 एकड़ जमीन है वो भी पीजेंट्स, वो भी फार्मर है, जिसके पास 1 एकड़ है वो भी पीजेंट्स है। तो अकॉर्डिंग टू द सोशल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकल कंडीशन, इट शुड बी डिवाइड। ये लेनिन को फील हुआ। सो द पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू बोल्शेविक एंड मेंशेविक। सो हु वाज व्लादिमीर लेनिन? You know, he was the leader of Bolshevik party, and Bolshevik को छोड़ के बाकी जितने रहे वो सब हो गए मेंशेविक में। So the party was divided into Bolsheviks and Mensheviks. जूलियस मार्टोव ये जो है ना, ये थे मेंशेविक पार्टी का लीडर, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ना वहां पे बहुत जन थे, बट ओनली व्लादिमीर लेनिन ही वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी पावर को आया, आने के बाद रसिया में कैसा तो स्ट्रांग सिचुएशन क्रिएट किया और मोनार्की सिस्टम को हटा गया। हटाने के बाद कैसा यहाँ पे एक तो डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेसी ही सोवियत यूनियन जो बना गया, दैट इज it was completely that power it was given means that taken by Lenin, and how established a developed country Russia. About that we will discuss in the next video, because 1905 revolution, about that point we will discuss। क्योंकि ना देखो यहाँ पे रशियन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कौन सा कारण के लिए? इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। उसके बाद आया सोशलिज्म, कैसा का मतलब क्या है। इसी के भीतर में जो छोटा छोटा इवेंट सब हुआ, मतलब जैसा कि अक्टूबर रिवोल्यूशन, और ये जो रिवोल्यूशन का इवेंट्स एंड इफेक्ट्स जो था 1905 रिवोल्यूशन, अबाउट दैट इस भीतर भीतर में जो जो हुआ था वी विल डिस्कस इन दिस नेक्स्ट वीडियो। then we can clearly understand about the global influence of the Russian revolution. So student, I think it will be more benefit for you if you will watch till the end, or if you will write all the points in your copy, then it will help to you. Otherwise only you will see the main picture, and only in the YouTube you will see what is this, or otherwise you will if you will try to increase my views, so that is not good for me. Understood? So students, you have to benefit, you should get benefit from the video, and continuously you have to watch. Okay, thank you all of you.